Okay, we'll start now. So in the last lecture, we have seen the road development plan. Okay, in the last lecture, we have seen the road development vision 2021. We have seen the various surveys that we are doing while aligning the highway. What is the reconnaissance survey? What is preliminary survey? Okay. Then we have seen what is the target that for the road length that are uh, the road length targeted for the vision 2021, that is for expressway 10,000 kilometer road is targeted, for the national highway 80,000 kilometer, state highway 1,60,000 kilometer, and for major district road 3,20,000 kilometer. Okay, so these are the road targeted target lengths that are decided for the vision 2021. Next we have seen, okay, next we will see now the highway alignment. What is the highway alignment? The longitudinal line of the road connecting the two stations point is known as alignment. Okay, what is the road alignment? When we are constructing the road, suppose we are drawn the center line, the 2 points of the center line, that is starting point and the end point, the line joining these two center line points is called as highway alignment. Okay, before starting the construction of the highway, we have to place the highway alignment first. According to that highway alignment, we will decide the width of the road along with that. Okay, so requisites for the ideal alignment. When we say the our alignment ideal, okay, when we say our alignment is ideal, when our alignment gives us the maximum utility. Okay, whatever passengers it serves, whatever goods it serves, okay, it should give the maximum utility, maximum traffic along that alignment. Then and then only we will say our alignment is ideal. Okay, means what? We will get the maximum revenue out of that our alignment. Also, it should possess the following requirement. Our alignment should be short. Okay, and how we this decide our alignment short is long? By studying the map study. Okay, that we have discussed in the previous lecture. What is map study? We have to do the map survey first. Means what? When we see the maps of that topography of that area, when where we are lining our alignment, we will exactly see what the shortest route that we can go for. Okay, by seeing the map. Okay, by studying the map, we will understand what is the shortest route to reach the destination. Okay, so by the map, we will decide the shortest routes. Also, we have to keep in mind while deciding the shortest routes, we should not pass the maximum. We should not go for the maximum aqueducts. We should not go for the siphons. Okay, that is what we should select the lines such that it should not cross the canals, rivers. Okay, if there is no option, then we will go for that. If there is option to divert, then we will divert. Okay, that we should have to keep in our mind, because to build the siphon, to build the aqueduct, to build the bridges, it will take lots of investment. Okay, so the first requirement for the ideal alignment is the route should be short enough. Then easy, it should be easy to operate or easy to construction. It should have the minimum problems while aligning the road. It should give the minimum difficulties. Means what? If there is a huge slope, then at that point we will feel difficult to the work. Okay, so it should give the easiness to the worker to work on that side, so that our alignment go fastly. Okay, then safety, it should be safe enough for the construction and maintenance from the point of view of the stability natural slopes, embankment, cut slope. It should be safe for the traffic operation with the safe geometric features. Okay, we should have to think about the safety of the workers as well.
Okay, because when we are working in the hilly slopes, in the embankment, cut slopes, okay, in that region, there are more chances of accidents. So we have to think about the accidents while constructing, as well as when our road is ready for use. We heard lots of news that landslides, etc., in the rainy seasons. Okay. Also, we have to take the safety gears on such a point where the landslides happens in the rainy season. Okay. So the safety should be there for the workers as well as for the road users when we are ready with the roads. We'll also have to think about the safety of the road users. Then most importantly, our line should be economical one. Okay, economic in the sense what? We should have to think about its initial cost. It should use the minimum cost so that all highway alignment should be will be economical. Means what? When our line is short, okay, means the length of road is short, it will take the less amount of money. If our length increases, it will take the more money. If our aqueduct increases, it will take more money. If our siphons increases, it will take more money. Okay, so we have to think about the all the requirements of the investments, where the investment is required, where is not. We should not have to go for the aqueducts, siphons, bridges, etc., super passages. Okay, that also we have to keep in our mind. Then also we have to think about the VOC. VOC means vehicle operation cost. That should be also a minimum. Means what? The wear and tear of the wheels. That also we should have to keep in mind so that our surface texture of the road, it should be smooth enough so that the wear and tear of the uh, wheels should be minimum. Okay. If the surface is very rough, mostly for the concrete roads, the wear and tear of the wheels will be more. Okay. We also think we have to also think about the vehicular operation cost. Then there are the several factors that controls the highway alignment. What are these points? Obligatory points, traffic, geometric design, and the last one is the economics. What is meant by obligatory points? The points which decides the highway alignment. Means what? The obligatory points of the two types: positive obligatory point and negative obligatory point. Positive obligatory point means what? The points with which we can go for the alignment. Means what? Plain terrain is there. Okay, easily we can go for the road construction. And negative obligatory points means what? The points through which we cannot go for the construction of the road. For example, what? If there is a temple, if there is a masjid, okay, buried places are there. Likewise, point we should go avoid for the alignment. So this includes the negative obligatory points. So that what is meant by obligatory points? Obligatory points are those points which decides the highway alignment. If these are the positive obligatory points, we'll go by that points. If these are the negative obligatory points, we cannot go for the road construction through that points. Okay. Then traffic condition also we have to think about. If the traffic is more, then our revenue, whatever we got, that will be also more. If the traffic is less, the whatever revenue we get from the road, it will be also less. So by constructing, we also have to decide the traffic condition. Also for the future expansion, we also have to see the future expansion as well. If the traffic intensity goes on increases in the future, we also have to think about the future growth of that road development plan. So we have to think about the road acquisition at the start only for the future development. Okay, like our Mumbai Delhi Expressway, they have taken a lot of land acquisition, and they have kept a lot of land in between so that there will be the future expansion. Okay, they can go for the future expansion. We will see that video at the end. Okay. Then geometric design, we have to decide the geometric features, that is the curve, when to provide, where to provide, what should the angle of the curves, how should we decide the overtaking side distance,
that we will see. Okay, extra widening, how much should be there, how much should be the depth of the roads, etc. We will see. Then the economic, that now only we have talked about that economic features, that also we have to keep in our mind. Stages. So these are the stages of the highway locations. The first stage is map study. Second is the reconnaissance survey. Third is the preliminary survey. And fourth one is the final location and detailed survey. Okay. So these four surveys that we have to keep in our mind. What is the first one is the map survey. Second is the reconnaissance survey. Third one is the preliminary survey. And fourth one is the final location and detailed survey. What we will see in the first, that is the map study. We'll see one by one. In the map study, we have to see the carefully about the topography of that region. Okay, we have to think about the topography of that region. Means what will decides the route which should not cross the rivers, which should not cross the canal. Because by the map we can easily understand where is the river is crossing where is the canal lining, where is the river line. Okay, where is the mountain, where is the forest. Likewise, we can easily understand by the maps, so that roughly we can judge where should be our routes. Okay, so by the map study, what we do, we will decide the some routes for the roads. Okay. Then what is meant by reconnaissance? It is examine the general characteristics of the area, decided most feasible routes of the detailed study. Okay. By map, what we have done, we have decided 2-3 routes where we can go for. By the reconnaissance survey, we will see whether these routes are the feasible or not. Means what? Whether there is the too much heavy, undulations of the routes are there. Cutting should be more. Cutting is more or less. Filling is more or less. Okay, that topography is decided by using the Avni levels, auto levels. By using these instruments, they will see whether that route is visible. If that route is feasible, then they will go for the detailed survey about that. Okay, means what? In the reconnaissance survey, what we have to just see the what we have route suggested by the map. Okay, by the map we can only see where we can go for. We will see only the rivers, canals, forest. Okay, likewise mountains. But what the actual road RLs are there, that we have to decide in the reconnaissance survey. Okay, what is the RL of this point? Okay, by roughly. By seeing also, by using Abney level, auto level, we will see the undulations of the ground, we can decide. Okay, so by the reconnaissance survey, few instruments are used like Abney level, tangent clinometer, barometer, okay, for the collection of the additional information of that route. Okay. Then some following details are collected. What the details are collected? See in the reconnaissance survey, where is the valley, ponds, lakes, marshy land, hills, permanent structures, and other obstructions along the route which are not available in the. Okay, the roads or the obstructions which are not there in the map. That obstructions are found out by the reconnaissance survey. Means what? If there is a permanent structure that we cannot destruct, if there is a marshy land, if there is a lake pond which is not shown on the map, okay, that structure we will see in the reconnaissance survey. Then approximate value of the gradient, length of the gradient, radius of the curves, alternate alignment, that is decided in the reconnaissance survey. Means what? By simply we can see the undulations of the road, and we can decide the what should be the gradient line, what should be the grade of the road, what should be the curves, where should be the curves are provided. That the rough study we will go for in the reconnaissance survey. Then what are the source of construction? Means what? The resources availability. Okay, resources availability in the nearby area. Resources means what? The stones, aggregates, water, whatever the cement is required, bitumen is required, labors, equipments, machineries. Okay, so these are the what are these? These are the resources. Okay, whether that resources available nearby the site, or we have to export or import from the large distance. If we have to import the
resources from the large distance, then the construction cost will goes on increasing. If we have the resources on the side, then our construction cost will be less. Okay, so also we have to think about the resources available nearby the site. Then when the alignment passes through the hill, additional details like the types of rock, deep strata, seepage flow, that also we have to see. Okay, if our alignment of the road passes through the hills, we have to see their strata. Okay, means what, up to what depth we have to go for the foundation for the road, or the strata available, or the depth of road that we should have to decide. Okay, like this seepage analysis that we have to study. Likewise, details we have to collect from that point. Then we have to go for the preliminary survey. Okay, we have now just seen map study. Then we have seen the recurrence survey. Now we will see the preliminary survey. This survey can be done either by the conventional approaches or the aerial survey of that area if the area is small. Means what? Conventionally, we can go there on the route. We can see the details of the route. Okay, in the preliminary survey, we collect the details of the route. Okay, whatever routes that we have decided. Suppose by the recurrence survey, we have decided 3 routes. These 3 routes are feasible. We can go for alignment of these 3 routes. Okay, but the map study what decides the feasible routes that given by the map study. Okay, map study मधून काय भेटतं आपल्याला, तर मॅप स्टडी मॅपवरून आपल्याला काय मिळतं आयडिया. मॅपवरून आपल्याला काय समजतं की आपण कोणत्या रूटनं जाऊ शकतो, किती रूट्स आहेत. सपोज आपल्याला पंढरपूरवरून सोलापूरकडे जायचं, आपल्याला रोड कन्स्ट्रक्ट करायचा. आता आहे रोड, पण सपोज आधी रोड नव्हता. ओके, मग आपल्याला मॅप स्टडीवरून काय डिसाइड करावं लागतं की कोणते रूट्स आहेत की ज्या रूटनं आपण पंढरपूरवरून सोलापूरकडे जाऊ शकतो. ओके, ते रूट्स आपल्याला पहिल्यांदा चेक करावे लागतात मॅप स्टडीवरून. मग असे 4, 5, 6 रूट्स आपल्याला सापडले की या रूटनं हे शॉर्टेस्ट आहे, इथं जरा रिव्हर्स आहे, तिथं लेक्स आहेत, असे 4-5 रूट्स बघितले. मग आपण काय करतो, रफली रिकनन्स सर्वे म्हणजे काय, रफली आयडिया घेतो की या रूट्सला आपल्याला किती चढ उतार किती आहे, रोडचा स्लोप किती प्रोव्हाइड करावा लागेल, किती ठिकाणी कर्व येईल, किती ठिकाणी ब्रिजेस बांधावे लागतील. ओके, हा रिकनन्स सर्वे मध्ये काय करतो आपण, रफ आयडिया काढतो. मग त्याच्यावरून काय डिसाइड करतो की आपल्याला कोणते रूट कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी योग्य आहे, फिजिबल आहे. असे आपण 2-3 रूट डिसाइड करतो रिकनन्स सर्वे मध्ये. त्या 2-3 रूटचा आहे तो आपण काय करतो नंतर प्रिलिमिनरी सर्वे करतो. प्रिलिमिनरी सर्वे मध्ये काय करतो आपण, त्या रूटची डिटेल्स कलेक्ट करतो. म्हणजे टोपोग्राफी कशी आहे तिथली, फिजिकली तो जाऊन एरिया चेक करतो आपण की तो कसा आहे, तिथल्या त्या सगळ्या एरियाची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतो आपण. नंतर टू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ द अर्थवर्क मटेरियल अँड अदर कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्स. तिथं जाऊन आपल्याला जर अर्थवर्क किती करावं लागेल, किती कटिंग असेल आपली, किती फिलिंग करावं लागेल. मग या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी करून काय करतो आपण, फायनल बेस्ट अलाइनमेंट आहे ते आपण डिसाइड करतो. म्हणजे त्या 2-3 रूट्स आहेत त्या तिन्हीचं कंपॅरेटिव्ह स्टडी करतो. या रूटने गेलं तर आपल्याला किती खर्च होईल, या रूटनं कन्स्ट्रक्शन करायचं म्हणलं तर किती खर्च येईल, तिसरा रूटने किती खर्च येईल. या तिन्हीचं काय करतो आपण, कंपॅरेटिव्ह स्टडी करतो आणि प्रिलिमिनरी सर्वे मध्ये एक कोणता तरी बेस्ट रूट आपण काय करतो, सिलेक्ट करतो. त्या मग पुढे जाऊन काय करतो आपण, त्या रूटचा डिटेल स्टडी करतो. दॅट इज द फायनल लोकेशन आहे डिटेल्ड सर्वे. मग तो जो आपण एक रूट सर्वे सिलेक्ट केलेला आहे त्या रूटचं सगळं डिटेल स्टडी केला जातो. डिटेल म्हणजे काय, रॉक स्ट्राटा कसा आहे, सॉइल असेल तर सॉइल स्ट्राटा कसा आहे, त्याची सीबीआर व्हॅल्यू किती आहे. ओके, नंतर त्याची लोड बेअरिंग कपॅसिटी किती आहे त्या सॉइलची. ओके, लेट लोड टेस्ट करतो आपण, सीबीआर टेस्ट करतो सॉइल वरती, सॉइल स्ट्राटाची कपॅसिटी काढतो लोड बेअरिंग. इफ देयर इज अ रॉक स्ट्राटाची लोड बेअरिंग कपॅसिटी कॅल्क्युलेट करतो. ओके, देन वी गो फॉर द फायनल लोकेशन. विल डिसाइड द फायनल लोकेशन. फायनल लोकेशन डिसाइड करत असताना आपण काय करतो, we have to first align the center line of that highway. Okay, when we are going for the final location, we have to decide the starting point of that survey line and the end point of that highway line. Okay, that we should have to connect this line as the center line of the road. That line is called as highway alignment. Also, we have to what we have to do, we have to, the center line stakes are driven at the suitable interval of 50 meters in the plane
and rolling terrain and 20 meter in the hilly area. Means what? We have to go for the placing the stones or the concrete pillars, any structure that we feasible to us. Okay. Means म्हणजे काय करतो आपण कॉन्क्रीटचे पिलर्स आपण बघतो बघा किंवा स्टोन किंवा काय करतो एक लाकडी फुटी घेतो प्रत्येक 50 मीटरला काय करतो सेंटर म्हणजे याचा ते कशासाठी करतो आपण तर सेंटर लाईन कुठून गेली आहे आपल्याला समजायला पाहिजे. ओके. त्यासाठी काय करतो ते टेम्पररी आपण त्यामध्ये काय करतो सेंटर लाईनला प्रत्येक 50 मीटरला एक असा कॉन्क्रीट पिलर असेल किंवा स्टोनचा असेल किंवा लाकडी पिलर असेल तर आपण प्रत्येक 50 मीटरला अलॉंग द सेंटर लाईन प्लेस करत जातो जेणेकरून आपल्याला सेंटर लाईन आहे ती कशी आहे ती डिसाइड होईल. ओके. हे झालं प्लेन अँड रोलिंग टेरेन असेल तर जर हेवी टेरेन असेल तर प्रत्येक 20 मीटर आपल्याला सेंटर लाईनला मार्क करत जावं लागतं. ओके. वी हॅव टू मार्क ऍट एवढी 50 मीटर when there is a plain or rolling terrain. If there is a hilly terrain, then we have to mark at every 20-meter interval of the highway line. Okay. Then the temporary benchmarks are fixed at the interval of the 250-meter and at all the drainage and underpass structures. Okay. If there is a drainage structure we have to construct, we have to decide the temporary benchmarks. Okay, that we have studied into the surveying. What is benchmark? What is permanent benchmark? What is temporary benchmark? Okay. Temporary benchmark is what? By with respect to the fixed point, we will decide the RL of that point. Okay, by simply assuming. Suppose we have decided on one fixed point. We just simply assume the RL of that point as 100 meter. And according to that fixed point, we will decide the RLs of the all road. Okay, all RL of the all road are calculated by using that temporary benchmark RL. Okay. So we have to decide the temporary benchmark also while constructing the road. The levels are taken along the longitudinal section and the cross section at every 50 to 100 meter interval. But each and every 50 meter interval, we have to calculate the RL of the roads by the cross section. Means what? Along the road, we are calculating RLs as well as across the road. Laterally means what? The cross-sectional road. We have to decide the RL of that cross-sectional road as well for every 50 meter intervals. Then the cross-section should be taken at every curves where there is a gradient change. Okay. Also, when there is a curve portion, that portion at every point we have to take the RLs. If there is a gradient change, this is what sudden rise or fall is there, then we have to also calculate the RL of that point. Then collect the data collected during the detailed survey should be elaborate and complete for the preparation of the detailed plan, design and estimate of the project. Whatever the data that we get from the detailed survey, that we have to preserve, that we by using that data we have to decide the plan for the construction of that road. Also, we have to go for the design aspects of that road as well as the estimation cost of that project work. Also, we have to decide. Okay, that all data is useful for whatever we have got from the detailed survey. Means soil quality, structure quality, what should be the length, what should be the width, what should be the depth of the road. Okay, that all data is useful for preparing the plan of the road, for the designing the road, as well for estimating cost of that project. Then these are the assignment questions. Everyone, please take the screenshot of this or write it down in your notebook. These are the assignment questions. Write it down in your notebook or take the screenshot. We have completed our first chapter. Write it down assignment questions.
I'll just simply take the screenshot. Next question, number 6. Take the screenshot of this question also. Afterwards, write down in your notebook. If you have any problem with any question, ask to me or just simply Google it. You'll get all the information on Google related to that. If you do not understand there also, you can ask me. The next question, take the screenshot of this also. Yes, Raga. Okay, so this is our end of first chapter and related to our highway engineering, the most important video we'll see now. This video is very important with respect to our highway, the largest highway of our India that we will see now. दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्शन में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। See carefully, this is very important video. As a civil engineer, we should know how the highways are designed. Okay, and this is our largest highway which is going in our India. Please see carefully. स्वागत है आप सबका Very पापा important कंस्ट्रक्शन में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने के साथ साथ इंडिया का फर्स्ट एक्सप्रेसवे होगा जिस पर व्हीकल की स्पीड लिमिट 150 किलोमीटर पर आवर की होगी। अगर कोविड का सेकेंड वेव नहीं आया होता तो इस एक्सप्रेसवे का नागपुर से शिरडी सेक्शन 1 मई से ही ऑपरेशनल हो गया होता। तो चलिए देखते हैं अभी तक कितना काम हुआ है, अभी का क्या सिचुएशन है और कब तक ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा। महाराष्ट्र में दो कैपिटल सिटी है, मुंबई और नागपुर, और दोनों कैपिटल सिटी के बीच वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से महाराष्ट्र में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यानी कि महाराष्ट्र में समृद्धि आएगी। इसीलिए इस एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग कहा जाता है और इस एक्सप्रेसवे का ऑफिशियल नेम होगा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र। See the official name of this highway is Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg. समृद्धि महामार्ग ये इससे 701 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। तो कंप्लीट होने के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस एक्सप्रेसवे से भी लंबा है, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से पहले ही ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने तक मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे में व्हीकल की स्पीड लिमिट 150 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी कि इंडिया में सबसे फास्ट। इस एक्सप्रेसवे के अलावा इंडिया में किसी भी एक्सप्रेसवे में स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं है। तो ये इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे के साथ साथ सबसे फास्ट एक्सप्रेसवे और इंडिया का एडवांस एक्सप्रेसवे भी होने वाला है।
मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा और इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने के बाद मुंबई से नागपुर के बीच का ट्रेवल टाइम 8 आवर्स का हो जाएगा। जुलाई 2017 में इस एक्सप्रेसवे के लिए लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हुआ था और 18 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि पूजन किया गया था और उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी 2019 में इस एक्सप्रेसवे में सिविल वर्क स्टार्ट हो गया था। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 16 पैकेज में किया जा रहा है और 3 फेज में इस एक्सप्रेसवे को पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। फर्स्ट फेज में नागपुर से शिरडी सेक्शन यानी कि 520 किलोमीटर का स्ट्रेच ऑपरेशनल होगा और उम्मीद थी कि फर्स्ट में 2021 से फर्स्ट फेज ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन कोविड के कारण इसमें डिले हो गया है। मार्च और अप्रैल में इस प्रोजेक्ट में बहुत ही स्लो काम हुआ था क्योंकि कोविड के सेकेंड वेव के स्टार्टिंग में ही महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था, तो कोविड के कारण इस एक्सप्रेसवे का काम डिले हो गया और अब उम्मीद है कि 2-3 महीने बाद फर्स्ट फेज पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। बट मुझे लगता है कि इस साल के लास्ट तक यानी कि दिसंबर 2021 में फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड फेज में शिरडी से इगतपुरी तक 103 किलोमीटर का स्ट्रेच नेक्स्ट ईयर मई या जून तक ऑपरेशनल होगा और थर्ड एंड फाइनल फेज नेक्स्ट ईयर यानी कि दिसंबर 2022 तक ऑपरेशनल होगा। तो दिसंबर 2022 तक ये एक्सप्रेसवे फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का एस्टिमेटेड बजट है 55,000 करोड़ रुपए और ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लगभग 400 विलेजेस से होकर क्रॉस करेगी और इस एक्सप्रेसवे के किनारे 24 टाउनशिप को डेवलप किया जाएगा। इन टाउनशिप्स में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ साथ स्किल मैनेजमेंट सेंटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और आईटी पार्क्स को डेवलप किया जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को MSRDC यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया। So see carefully, this all road is constructed by the MSRDC, means what Maharashtra State Road Development Corporation. सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा इथं आपण कोणताही पैसा यूज केलेला नाही, सगळा पैसा जो आहे तो महाराष्ट्र आपल्या स्टेट गव्हर्नमेंटनं इन्वेस्ट केलेला आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट जा रहा है और इसकी फंडिंग भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही कर रही है और पूरे प्रोजेक्ट में NHAI का कोई रोल नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है महाराष्ट्र के लिए और बिहार एंड वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट को इनसे सीखना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी भी वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बना सकती है और इस मामले में उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एजेंसी यानी कि UP-IDA के द्वारा ही बनाया जाता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। Also keep in mind for this road what is the central position. आपण मिडल ला काय ठेवतो, मिडल ला एम्प्टी पेस ठेवतो, कशासाठी ठेवतो? मिडल सेंट्रल रोड जो आहे इथे दिसतंय बघा, दोन्ही साइडचे 4-4 लेनचा रोड आहे, 8 लेनचा टोटल, आणि जो मिडल पोर्शन आहे तिथं आपण काय करतो, डिवायडर म्हणतो आपण त्याला. हा जो रोड डिवायडर आहे तिथं आपण काय करतो, ट्री प्लांटेशन वगैरे करतो. या एक्सप्रेसवे मध्ये जो मिडल पोर्शन जो आहे what is it called, the road divider, it is of approximate 22 meter. 22 मीटर एवढा आपण काय केलं आहे, मिडल जो आहे तो पोर्शन ठेवलेला आहे. तो कशासाठी, फॉर द फ्युचर मध्ये जर लँड ऍक्विजिशन करावं लागू नये, म्हणजे इफ वी आर गोइंग फॉर द रोड एक्सपान्शन इन द फ्युचर देन वी विल यूज दॅट मिडल पोर्शन. ओके, 22 मीटर एवढा आपण काय केलं मिडल पोर्शन, म्हणजे आणखी 4 लेन बसतील, त्यामध्ये आणखी 4 लेन बसतील एवढा आपण काय केलं मिडलला पोर्शन तिथं लेफ्ट सोडलेला आहे. ते करून काय होईल त्याचा यूज फ्युचर मध्ये आपल्याला जर रोड डेव्हलपमेंट्स करायचे असतील तर तिथं आपण वी कॅन गो फॉर द रोड डेव्हलपमेंट्स इन द फ्युचर. ऑल्सो लक्षात ठेवण्याची गोष्ट काय आहे यामध्ये, दिस रोड क्रॉसेस द मेनी फॉरेस्ट एरिया. ओके, while traveling through that forest area they have constructed the roads, tunnels and super passages very nicely. Okay, म्हणजे काय केलंय त्यांनी, जंगलातून भरपूर ठिकाणी जातं रोड, यांनी काय केलंय, जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असतात त्यांच्यासोबत त्यांच्याकडून त्या रोडच्या डिझाईन्स, म्हणजे जर सपोज टनल बांधाय असेल, रोड वरून जात असेल आणि जर खालून पॅसेज जे काय जंगलातून जाणारे अॅनिमल्स आहेत त्यांच्यासाठी ठेवायचं असेल तर त्यांनी टनल्स अशा प्रकारे डिझाईन केलेले आहेत की त्यामध्ये असं
जाताना त्यांना वाटलं नाही कुठं आपण अडकतोय की काय, त्यांना असं फील झालं पाहिजे की आपण जंगलातूनच ट्रॅव्हल करतोय. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी असे श्रब्स वगैरे किंवा गवत प्लांटेशन केलेलं आहे. ओके, जेणेकरून ते ज्यावेळेस टनल मधून सुद्धा जातील त्यावेळेस त्यांना असं फील झालं पाहिजे की आपण जंगलातूनच ट्रॅव्हल करतोय. ओके, कुठेतरी असं रस्ता चुकल्यासारखं किंवा आपण कुठेतरी अडकत चाललोय असं त्या जे काही अॅनिमल्स आहेत त्यांना फील झालं नाही पाहिजे. त्याची सुद्धा काळजी घेतलेली आहे. प्रत्येक काय काय ठिकाणी रोड खालून आहे वरून काय केलं आहे, सुपर पॅसेज प्रोव्हाइड केलेला आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा जो सुपर पॅसेज आहे तिथं त्या सुपर पॅसेज वरती माती टाकून त्याच्यावरती ट्री प्लांटेशन केलेलं आहे, जेणेकरून तिथून सुद्धा जाताना त्यांना असं वाटलं पाहिजे की आपण जंगलातूनच चाललेलो आहे. ओके, एवढी काळजी त्या रोड कन्स्ट्रक्शन करत असताना त्यांनी घेतलेली आहे सगळे. ऑल्सो विल सी, हा आपला आहे महाराष्ट्रात भारतातला सगळ्यात मोठा एक्सप्रेस वे. ओके, दिस इज द लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे फ्रॉम आवर इंडिया. कारण की दिल्ली मुंबई ऍक्च्युअल एक्सप्रेस वे सगळ्यात मोठा दिल्ली मुंबई आहे. ओके, 1380 किलोमीटर, बट हा आपला फक्त 701 किलोमीटर आहे. पण तो कन्स्ट्रक्शन होण्यासाठी खूप टाइम आहे आणखी. त्याच्या आधी हा कन्स्ट्रक्शन पूर्ण होईल या रोडचं. इथं त्यांची टार्गेट डेट आहे डिसेंबर 2022 पर्यंत कम्प्लिशनची. म्हणजे हा जर रोड डिसेंबर 2022 पर्यंत कम्प्लीट झाला तर दिस विल बी द लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे ओके इन इंडिया. ज्यावेळेस दिल्ली मुंबई कन्स्ट्रक्शन कम्प्लीट होईल त्यावेळेस दॅट विल बी द लार्जेस्ट इन नॉट ओनली इन इंडिया, द लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे इन एशिया ऑल्सो. ओके, you will see that video also. Mumbai Delhi Expressway. This is also the highest project of our government. Please see carefully this video also. Fascinating. Exciting. Amazing. स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसका निर्माण हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की संक्षिप्त जानकारी और इसके निर्माण कार्य के लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी जानेंगे। इस एक्सप्रेसवे का कुछ भाग बहुत ही जल्द चालू होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से होती है और यह गुरुग्राम, मेवात, रतलाम, कोटा, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, विरार होते हुए मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है। अतः इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया की जेएनपीटी पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा करने के लिए दो विकल्प मौजूद है। पहला नेशनल हाईवे नंबर 48, जिसको कि दिल्ली मुंबई हाईवे के नाम से भी जाना जाता है और यह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे का पार्ट है। इस हाईवे से दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा को लगभग 24 घंटे में पूरा किया जाता है। और दूसरा विकल्प है दिल्ली आगरा मुंबई हाईवे और इस हाईवे के द्वारा दिल्ली से मुंबई के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 28 घंटे का समय लग जाता है। अतः दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई की यात्रा को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई की दूरी वर्तमान दूरी से 130 किलोमीटर और कम हो जाएगी, जिससे कि समय और ईंधन दोनों की बचत होगी और पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा में भी कमी आएगी। इस एक्सप्रेसवे के कारण सालाना लगभग 32 करोड़ लीटर से भी अधिक ईंधन की बचत होगी, जिससे कि पर्यावरण में CO2 एमिशंस में 85 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो कि लगभग 4 करोड़ पौधारोपण के बराबर होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत लगभग 15 लाख पेड़ों को भी लगाया जाएगा। वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन हेतु इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत एशिया का पहला और विश्व का दूसरा एनिमल अंडर पासेस का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत
3 एनिमल अंडर पासेस का निर्माण किया जाएगा और 5 एनिमल ओवर पासेस का भी निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई लगभग 7 किलोमीटर के बराबर होगी। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 2 आइकॉनिक 8 लेन टनल्स का भी निर्माण किया जाएगा। एक टनल का निर्माण मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर के बराबर होगी, और दूसरे टनल का निर्माण माथेरान इको सेंसिटिव जोन में किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इन टनल्स के निर्माण से वन्य जीवों के मूवमेंट में इस एक्सप्रेसवे के कारण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 भागों में किया जा रहा है। पहला दिल्ली से वडोदरा तक, जिसके अंतर्गत एक्सप्रेसवे का निर्माण बिटुमिन पेवमेंट से किया जा रहा है, और इसका दूसरा भाग वडोदरा से JNPT पोर्ट तक है, जिसका निर्माण कंक्रीट पेवमेंट से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और नितिन गडकरी द्वारा इस एक्सप्रेसवे पर ऑलरेडी 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलाकर टेस्ट किया जा चुका है, और इस टेस्ट को नियंत्रित वातावरण में किया गया था। अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे की कुछ विशेषताओं के बारे में, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि 50 हावड़ा ब्रिज का निर्माण किया जा सकता है। इसके निर्माण में लगभग 35 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी को मूव किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को सफल बनाने के लिए लगभग 4 करोड़ ट्रक ट्रिप्स होंगे। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के दौरान लगभग 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के दौरान, जो कि हमारे देश के एनुअल सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी का लगभग 2% है। इस परियोजना से लगभग हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां उत्पन्न हुई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत लगभग 94 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण किया जाएगा, और इन वे साइड एमिनिटीज के अंतर्गत पेट्रोल पंप्स, मोटेल्स, रेस्ट एरियाज, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स का निर्माण किया जाएगा। किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसीज में इवैक्यूएशन के लिए हेलीपैड्स का भी निर्माण किया जाएगा, और यह हमारे देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसके वे साइड एमिनिटीज के अंतर्गत हेलीपैड्स का भी निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर वर्ष 2018 में अवार्ड किया गया था। इसकी आधारशिला मार्च 2019 को रखी गई थी। वर्तमान में लगभग 1200 किलोमीटर से अधिक स्ट्रेच का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा चुका है, और दिल्ली दौसा लालसोट खंड, जो कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आता है, और यह खंड दिल्ली और जयपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा। इसके साथ ही वडोदरा अंकलेश्वर खंड, जो कि वडोदरा और भरूच के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वर्तमान में इन खंडों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और इन दोनों खंडों को संभवतः मार्च 2022 तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। वैसे इन दोनों खंडों को 2021 में ही खोलने की योजना थी, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको कि पहले जनवरी 2023 तक बनकर तैयार होना था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश के इकोनॉमिक हब्स जैसे कि जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत इत्यादि के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसके कारण व्यापार और रोजगार में वृद्धि होगी। इस एक्सप्रेसवे को राजस्थान और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अर्थात रूरल एरिया से गुजारा जा रहा है, जिसके कारण उन क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो पाएगी। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 6 फुट ऊंची दीवारों का निर्माण किया जाएगा, जिसके कारण कोई व्यक्ति या जानवर एक्सप्रेसवे को क्रॉस ना कर पाए। इससे किसी प्रकार की संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाए, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को इंस्टॉल किया जाएगा। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास, स्पीडोमीटर, टेलीफोन बूथ और सोलर लाइट्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अंतर्गत बनाए जाने वाले टोल प्लाजास का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया जाएगा, जिसमें क्लोज्ड टोल सिस्टम के माध्यम से जितनी दूरी आपने तय की है केवल उतने का ही टोल भुगतान करना होगा। वर्तमान में इसके दोनों खंडों पर अर्थात दिल्ली जयपुर खंड और वडोदरा अंकलेश्वर खंड पर निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है। इतना ही नहीं, पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा, और इसकी घोषणा स्वयं मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा की गई है। और शुरुआती चरण में दिल्ली से जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 2 लेन्स का निर्माण किया जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड वायर द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके इलेक्ट्रिक लेन्स पर भारी वाहन जैसे कि बसों और ट्रकों का परिचालन किया
जाएगा। इस प्रकार की बसेस और ट्रक्स हाइब्रिड होगी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल दोनों से चल पाएगी। लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए जेवर से फरीदाबाद के बीच 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के जमीन अधिग्रहण के लिए लगभग 20,600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसके निर्माण कार्य में लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके वर्तमान निर्माण कार्य परिस्थिति के बारे में, जिसको कि NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। कहते हैं शादी के बाद 2 बच्चे हों तो फैमिली कंप्लीट हो जाती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण टोटल 52 पैकेजेस में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिल्ली से मुंबई तक का निर्माण टोटल 47 पैकेजेस में किया जा रहा है और विरार JNPT पर का निर्माण टोटल 5 पैकेजेस में किया जा रहा है। टोटल 52 पैकेजेस में वर्तमान में 34 पैकेजेस का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 914 किलोमीटर है। 12 पैकेजेस का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, जिसकी लंबाई लगभग 313 किलोमीटर है। 5 पैकेजेस जिनकी लंबाई लगभग 163 किलोमीटर है अंडर बिडिंग स्टेज में है और एक पैकेज जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है, इसका DPR तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR से वडोदरा तक टोटल 34 पैकेजेस आते हैं, जिसमें DND फ्लाईओवर से सोहना तक 3 पैकेजेस आते हैं, जिसके अंतर्गत एक पैकेज का निर्माण कार्य चल रहा है और 2 पैकेजेस का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और सोहना से वडोदरा तक 31 पैकेजेस आते हैं और सबकी स्टेटस किन किन पैकेजेस का कितना प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, सबकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी गई है। अब बात करते हैं वडोदरा से विरार तक के सेक्शन की। इसके अंतर्गत टोटल 13 पैकेजेस आते हैं। 5 पैकेजेस का निर्माण कार्य चल रहा है और बाकी का बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और विरार से JNPT पर के अंतर्गत टोटल 5 पैकेजेस आते हैं और वर्तमान में इसके पैकेज 18 का DPR तैयार किया जा रहा है और बाकी पैकेजेस अंडर बिडिंग स्टेज में है। और ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सभी पैकेजेस की लिस्ट। इनमें पैकेजेस के नाम, उनकी लंबाई, उनका स्टेटस, काम शुरू होने की तिथि, किन पैकेजेस का कितना प्रतिशत काम कंप्लीट हो चुका है और कब तक काम पूरा कर लिया जाएगा, इसकी जानकारी तथा किन किन पैकेजेस को कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा डेवलप किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी दी गई है। और ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा रूट अलाइनमेंट। जो आप रेड कलर में रूट देख रहे हैं, सभी 52 पैकेजेस को मिलाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कुछ इस प्रकार से होगा। अगर आप गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके अवश्य देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। So these are the very two important highways that our state and central government is going for construction. We should know these projects. Now, all of you, please mark your attendance to the chat box. All of you, please mark your attendance to the chat box. Then you can leave and join for the next lecture. You can mark your apps present in the chat box. Then you can leave and join for the next lecture. Thank you for attending the lecture.